পথে সঙ্গে সুজয়। Stop being afraid of what could go wrong and excited about what miracles can happen and go right. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 309তম 309th এপিসোড চলতে চলতে চলে এসেছি অনেকটা দূর। আজকে এই এপিসোডে আমার অতিথি বিশিষ্ট সেলিব্রিটি ফিটনেস ট্রেনার ইয়াশ আগরওয়াল। নমস্কার ইয়াশ, থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু মাই শো। ধন্যবাদ দেব ইয়াশকে আমাদের সাথে আসার জন্য, টু মেক আউট অফ টাইম আফটার বিজি স্কেডিউল। ধন্যবাদ দেব সকল দর্শকদের থ্রু আউট দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, থ্রু আউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, যারা হয় আমাদের হাই নিউজ চ্যানেল থেকে দেখে, কিংবা highNewsLive.in থেকে দেখে, কিংবা আমাদের ফেসবুক পোস্ট দেখে, কিংবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের থেকে দেখে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতখাওনি, 7 rules of success. First rule is write your goals. Write down what you need to do. So there's a checklist that what are the goals, কি goals আমরা অ্যাচিভ করতে চাই, কোথায় আমরা পৌঁছাতে চাই। Then the second rule of success is train your mind. Mind actually runs the entire body. এই যে 5, 5.5, 6 ফুটের যে বডি, the mind কিন্তু রান করে the entire thing. The mind is not right, nothing will go. And the mind has to be trained. I mean, বারবার কথায় কথায় বলি, thoughts, actions, habits, character and destiny. Good thoughts leads to good actions, good habits, good character, প্রত্যেকটাই কিন্তু মাইন্ডে। So train your minds. The third rule of success, keep growing. প্রত্যেক দিন ডেল্টা এক্স করলেও যেন একটা মানুষ হিসেবে আমরা যেন একটু এগোতে পারি, একটু আগের দিনের চেয়ে বেটার মানুষ হতে পারি। সো কিপ গ্রোয়িং এভরি ডে, এভরি সেকেন্ড, এভরি মিনিট। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, টেক মেজার্ড রিস্ক। অনেকে বলে যে রিস্ক তো নিতেই হবে। সো আমার সেই ম্যানেজারের কথা মনে পড়ে, এক ব্যাংকের, আশ্রাত ব্যাংকের ম্যানেজার একজন ব্যবসায়ীকে বলছিলেন, তিনি বলেছেন যে খুব ইয়াং ছেলে, তাকে বলছেন যে স্যার এই ব্যবসা করতে করতে এই রিস্ক নিতেই হবে। ভদ্রলোক, সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক আমার মনে আছে, বলেছিলেন যে রিস্ক নেওয়ার সময় মনে রাখবে যে তুমি 3 তলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার রিস্ক নিচ্ছ, নাকি আমার এই 3 ফুট টেবিলটা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার রিস্ক নিচ্ছ। 3 ফুট টেবিল থেকে ঝাঁপ দিলে ম্যাক্সিমাম তোর অ্যাঙ্কেল স্প্রেন হতে পারে, কি 3 তলা থেকে ঝাঁপ দিলে তোমার কিন্তু মৃত্যুও হতে পারে। সো টেক রিস্ক, বাট টেক মেজার্ড রিস্ক, কিন্তু একটু রিস্ক কিন্তু নিতেই হবে। দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস, প্র্যাকটিস পারসিভিয়ারেন্স। সহনশীলতা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের অনেক ওঠা পড়া, বাস্তব ভীষণ কঠিন ওঠা পড়া থাকবে, বাট উই নিড টু বি পারসিভিয়ারেন্ট। দি সিক্সথ রুল অফ সাকসেস ইজ বি কনসিস্টেন্ট। সকালবেলা একরকম ভাবলাম, বিকেলবেলা একরকম ভাবলাম, সন্ধ্যেবেলা কিংবা সকালবেলা একরকম কাজ করলাম, দুপুরবেলা একরকম করলাম, বিকেল সন্ধ্যে তালা করলাম। It won't gain any direction. Because সেই যে বললাম না প্রথমটা, রাইট ইউর গোল, সেই গোলের দিকে তো এগোতে পারবো না তাহলে। কেন গোল থেকে যদি আমি ভ্যাসিলেট করে যাই তাহলে তো আমার ডিরেকশন অফ ফোকাসটা চলে গেল। সো উই ওয়ন্ট বি এবল টু গেট হোয়াট উই আর অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাইভিং ফর। আজকে সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য লাস্ট রুল অফ সাকসেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাভ কনফিডেন্স। কনফিডেন্স যদি থাকে, আমার নিজের ওপর নিজের যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে সারা বিশ্ব সেটা কিছু করতে পারবে না। সো আই হ্যাভ কনফিডেন্স ইন মাইসেলফ, সো হ্যাভ কনফিডেন্স। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে, তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা। তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আজকে বেশিরভাগটাই শুনবো অতিথির নিজের মুখে, কিন্তু জাস্ট 2টো কথা। Yash Agarwal is a founder of Yash Fitness. He's a celebrity fitness coach. He's a nutritionist, he's a national television speaker and a columnist. বাকিটা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমেই আমরা জেনে নেব। Yes, I'd like to ask you that first, you know, socially you are known as a fitness coach, okay, and people knows you like that, and you also project yourself like that. But when we talk in our show, আমরা যখন আমাদের শোতে কথা বলি, we try to explore the whole human being that the person is, because we celebrate success and we invite people who are successful in their own ways. তোমার ছোটবেলার যদি কথা বলো, your early days of growing up, are you born and brought up in Calcutta? So yes, मैं Calcutta में born हूँ. I born in Calcutta. Then I shifted to Bombay
बिकॉज माई लाइक नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि चाइल्डहुड डेज में जाना है, मुझे अपना चाइल्डहुड डेज में कभी नहीं जाना है, बिकॉज माई चाइल्डहुड डेज वॉज द वर्स्ट इन माई लाइफ। बिकॉज मैं जब 10 महीने का था तब से आई वॉज वेरी इल एंड मेरे बॉडी में पानी भर जाता था एंड उसके वजह से आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो 10 महीने से लेके ऑलमोस्ट 16 साल तक, टोटल 16 साल तक आई वॉज ऑन अ हाई मेडिसिन। तो 20 से 25 टैबलेट्स डेली का लेना। आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 100 टाइम्स एंड नॉर्मली लोग वेकेशन बनाने के लिए कहीं पिकनिक स्पॉट फॉरेन कंट्रीज या बाहर के टूर में जाते थे। मेरा पिकनिक स्पॉट होता था कि मैं घर से हॉस्पिटल जाऊं और हॉस्पिटल से घर आऊं। तो हर महीना वो रूल, वो सिस्टम था हमारे इधर कि हर महीना एक बार तो एडमिट होना ही है और बॉडी में वो सलाइन चढ़ना ही है। बिकॉज इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, मतलब बचपन से ही बॉडी में वीकनेस था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर था एंड बॉडी में क्रैम्प्स ऐसे आते थे कि रात में जैसे बोलते हैं ना कि सुनापन हो गया, वो कभी भी जैसे बैठे बैठे होता है या किसी को या कुछ काम करते हैं, बट मुझे आधी रात में सोते सोते भी हो जाता था। तो वो सारा चीज देखते हुए, क्योंकि मैं इतना चीज से तकलीफ में गुजरा हूं मेरा बचपन, तो मैं यही चीज सोच के ये अपना जो फिटनेस का जो प्रोफेशन है चालू करने का बहुत बड़ा मकसद था। देखिए, क्योंकि मैं एक एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं वो सारा चीज़ छोड़ के इसलिए इधर आना चाह रहा था और मैंने सब चीज़ अपने दम पे इसलिए खड़ा करना चाह रहा था ताकि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं, मैं लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि आज मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो सकता है तो आपका भी हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। तो ये बॉडी जो पेन से मैं गुजरा हूं वही चीज़ मैं लोगों तक एक पहुंचाता हूं कि मैसेज के तौर पे। बट हाउ डिड यू मैनेज योर स्कूल एंड कॉलेज? सो देखिए, मेरा स्कूल कॉलेज में हमेशा से जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्कूल एंड कॉलेज में मेरा हमेशा से थोड़ा लाइक स्कूल डेज में स्पेशली ऐसा होता था, जैसे मैं 4th स्टैंडर्ड तक कैलकाटा में पढ़ा हूँ, उसके बाद बॉम्बे में पढ़ा हूँ एंड उसके बाद अपना जो कॉलेज है वो भी बॉम्बे से मैंने किया है। तो व्हाट स्ट्रीम डू यू परस्यू? सो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने अपने करियर बनाने के लिए मैंने फिटनेस में डिप्लोमा किया है। सो आई एम अ इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस कोच एंड द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो मैंने इसका प्रॉपर डिग्री लिया है 3 साल का कोर्स करके। तो ये सारा चीज मैं देख रहा था जब लोगों में तकलीफ, तो ये एक मैसेज। बॉम्बे में आप তোমার কি বাবা মাও বম্বেতেই ছিলেন? মানে তুমি যখন বম্বেতে বলছো তুমি 4 বছর 5 বছরে বম্বেতে গেলে, তখন কি তোমার বাবা মাও বম্বেতে ছিলেন? बॉम्बे में मम्मी एक्चुअली मेरी बॉम्बे से बिलोंग करती है, बट फैमिली हमारा हमेशा से कैलकाटा में रहे, कुछ फैमिली बॉम्बे रहती है। तो मैं अपने मासा जी के साथ रहता था, अंकल आंटी के साथ। हाँ, मैं उनके साथ रहता था कुछ 10 से। हाँ, मैं 12 साल उनके साथ ही था और उन्होंने ही मेरे को ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएट। व्हाट हैपेंड जे आफ्टर 16 you gained your fitness or you just got over the illness that you had for which you were admitted every month? Right. एक्चुअली देखेंगे कि बहुत लोग अपने शरीर के वजह से बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सुसाइड करने का कोशिश करते हैं ना। तुम्हार जे प्रॉब्लमটা সেটা তো একটা মেডিকেল প্রবলেম, রাইট? your problem was a medical problem, right? and it was not getting over। মানে 4 বছর থেকে 16 বছর মানে কিংবা ছোটবেলা থেকে 16 বছর মানে it's a long time, right? and তোমার তো কোনো ডিপ্রেশন কি, তোমার তো নিজে ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডারই হয়েছিল। সো হাউ डिड इट गेट ओवर? सो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज बीमारी एक ऐसा चीज है ना, भली आपको बचपन में हो या एक सर्टेन एज के बाद हो, आपके दिमाग में चलते रहता है कि वाई यू कैन बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वाई यू कैनॉट हैंग अराउंड विद अ नॉर्मल पर्सन। क्योंकि क्या होता था, नॉर्मल पर्सन के इन द सेंस आपको खेलना कूदना अलाउड नहीं था, आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, बाहर घूम नहीं सकते हो। आज जब किसी के साथ बैठे हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाता था, क्योंकि आपका जो बॉडी का रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर इतना वीक था कि कुछ भी आप करते हो तो आपको वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये सब चीज मैंने देखा कि नहीं, इससे हमको कम आउट होना है। तो धीरे धीरे मैं, क्योंकि मैं उसके बाद काफी लोगों के पास गया, लेकिन काफी लोग मेरे को मतलब गाइड तो किए, बट वो एक रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। इसका रीजन था क्योंकि मेरा जो बॉडी का कॉम्प्लिकेशन था वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा था दिन पे दिन। तो ये चीज सोच सोच के मैंने खुद ने अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर रिसर्च करने लगा, अलग अलग जगह पे साइट में मैं जाने लगा, देन इसके ऊपर मैं ग्रेजुएशन करने लगा, बुक्स पढ़ने लगा। तो ये सब करते 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 मैं जैसे अपने बॉडी पे इस्तेमाल करने लगा, वैसे मैं लोगों तक एक मैसेज के तौर पे पहुंचाने लगा। কখন মনে হলো
যে তোমার যে অসুস্থতা, your whatever your weaknesses or whatever your troubles are with the body, you can mend it. একটা তো ডাক্তারের বদলে তোমার তো মনে হয়েছিল যে you can mend it, তুমি নিজেই সারাতে পারবে, এবং কখন সেটা বিশ্বাসে পরিণত হলো, when it struck you and when is the time that you believe that no, I can work on my body. অন্যদের কথা মানে পরে শুনবো, আগে তোমার কখন মনে হলো যে when did you आपको कब लगा कि मेरे को एक्चुअली मेरा जब मेरा उम्र था कुछ 13 साल, व्हेन आई बिकम 13 इयर्स, मेरे बॉडी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था, एक्सेस बढ़ गया था। एंड उस दिन डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था फैमिली को कि कुछ दिन तक का ही मेहमान है। देन उसके बाद मेरे को अंदर ही अंदर 13 साल की उम्र में बहुत खाया जा रहा था कि मतलब इतना मेरे को मेरा क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, फैमिली स्ट्रेस है, टेंशन में है इमोशनली एंड एवरीथिंग। सो मेरे को ये चीज 2-3 साल से अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। एंड उस ऐसा नहीं कि मैं कुछ ट्राई नहीं कर रहा था, बट क्या होता था मेरे को सब चीज से रेस्ट्रिक्शन था। आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे अंदर एक अंदर से ना 16 साल में पता नहीं क्या एक आवाज उठा कि नहीं करूंगा मैं। तो मैं सब चीज को है ना, सब चीज छुपा के लाइक है ना, फैमिली को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया। मैं अपने बॉडी पे काम करने लगा, लोगों से मिलने लगा, बात करने लगा, अपने आप को इम्प्रूव करने लगा। तो व्हेन आई वाज 16 एक्चुअली इट गॉट अ क्लिक 16 में ही मुझे कॉन्फिडेंस कि मेरे को करना है, मीन्स करना है, और मेरे को अपने बॉडी को बेटर बनाना है। ऐसे यू कैन नॉट लीव योर लाइफ, अगर इस धरती में आया तो कुछ करके जाना है। और अपना बॉडी, योर बॉडी इज अ टेम्पल, आपका बॉडी ही सब चीज है। अगर बॉडी साथ नहीं दिया ना तो आपके पास कुछ नहीं है। তোমার কখন মনে হলো যে তুমি তো বিকম করলে যে নিউট্রিশন নিয়ে তোমার কাজ করতে হবে, নিউট্রিশন, তুমি ইউ আর নিউট্রিশনালিস্ট অলসো, হ্যাঁ, এবং তুমি বলছো তুমি ইউটিউব দেখে, ইন্টারনেট দেখে অলরেডি ইউ স্টার্টেড ওয়ার্কিং। কখন মনে হলো নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশোনাটাও করা দরকার, দ্যাট ইউ नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ऑन न्यूट्रिशन? राइट, एक्चुअली क्या होता था सर कि मतलब जब मैं ये चीज मैं अपने बॉडी पे वर्क कर रहा था तो मुझे रिजल्ट आ रहा था, और बेटर रिजल्ट आ रहा था। जो मुझे लोग गाइड कर रहे थे उससे बेटर रिजल्ट मैं अपने बॉडी पे ला रहा था। बट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछने लगे कि आपके बॉडी में इतना सर्टेन चेंजेस कैसे आने लगा, तो मैं उनको गाइड तो करता था, बट उनको यही मैं बताता था कि मैं आपसे अभी चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हूं। तो उस समय ही जैसे मेरा, जब मैं कॉलेज में था तभी मैं कॉलेज के साथ साथ ये चीज में ध्यान देने लगा, फिटनेस के ऊपर, एंड फिटनेस के करीब हाँ पूरा मैं लाइक नॉर्मली CA MBA के लिए लोग ग्रेजुएट के लिए जाते 12th के बाद, मैं उसके बाद ही क्या किया कि फिटनेस में ही पूरा एंटर कर लिया, एंड फिटनेस के ऊपर ही मैंने स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा। Because that was your passion. We'll come back to you. We have come almost to the end of the first half. I have a mandatory question with which I wrap up the first half. I keep on saying moments make a life. মুহূর্তই জীবন তৈরি করে, moments, any moments in life. So you are a very young guy, and we pray and wish that you have a long, healthy life. Now onwards, you are having a healthy life. But any moment till date which you'd like to cherish for the rest of your life, কোনো মুহূর্ত এখন অবধি যেটা তুমি সারা জীবন মনে রাখতে চাও, এসছে কি এখন অবধি? मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मैं एक्चुअली क्योंकि मैंने अपने लाइफ में भी है ना, क्या मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैंने भी लाइक आई थॉट टू कंप्लीट माई सेल्फ, मैंने अपने लाइफ को खत्म करने का कोशिश किया है। अच्छा, या लाइक आई ट्राई टू सुसाइड। ओके, बट सुसाइड इन द सेंस, मैं बॉम्बे में मरीन लाइन होते थे, समुद्र का किनारा, मैं 2 बार उधर गया, एंड जस्ट थॉट की फिनिश माई सेल्फ, बिकॉज इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, only because of one thing, health, nothing was there. हेल्थ एक ऐसा चीज है ना, अंदर ही अंदर आदमी को खत्म कर देता है, और वो मेरे साथ हो रहा था। मतलब फुल खुन्नस नहीं कर रहा था कि क्या करूं, बट वही होता था कि फैमिली का फिर आग बंद करके मैं हमेशा एक चीज सोचा हूं कि अगर आपको कुछ रास्ता ले रहे हो, वो आपको लग रहा है कि गलत है, आप अपने आंखों को बंद करिए, सोचिए अपने फैमिली के बारे में, अपने कलीग के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो आपके लिए क्या कुछ किया है। तो आप उनको कुछ गिव नहीं करना चाहते हो क्या, या सोसाइटी, आप इस दुनिया में आए तो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हो, तो ये सब चीज मेरा कुछ कदम करने, so that moment when you thought that right still remains with you, that right कि मेरे को आगे बढ़ना है और लोगों तक एक, no, first is the moment that you thought that you end your life and then you closed your right eyes and right. So দেখেছেন 308 সপ্তাহ হয়ে গেছে, 309তম সপ্তাহ, and moments of life of people are very very different. চলে এসেছি প্রথমার্ধের একদম শেষে।
ব্রেকে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতন একটি গল্প বলবো। এক ভদ্রলোক বাড়িতে ফিরেছেন অফিস থেকে, মাথা ব্যথা করছে, এর মধ্যে ড্রাইভার গাড়ি তুলে চলে গেছে, বাইরে ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে, একটু টুকটুক করে বৃষ্টি পড়ছে। উনি ভাবলেন যে না, এই যা মাথা ব্যথা আমার বাড়িতে, দেখলেন যে কোনো মাথা ধরার ক্রোসিন কি ক্যালপল কি সেই ধরনের কোনো ওষুধ নেই। উনি বেরোলেন, বেরিয়ে বৃষ্টিটা এতই জোরে শুরু হলো যে একটা রিক্সা ছাড়া যেতে পারবেন না। সো একটা রিক্সা সামনেই দেখলেন, রিক্সাওয়ালাকে দেখে রিক্সাওয়ালা বলে যাবেন, বললো দাদা যাওয়ার তো দরকার, শাওয়ারই হয়নি সারাদিন, কিন্তু আমার গায়ে হাত পায়ে ভীষণ ব্যথা, একটু জ্বরও আছে। বললো আপনি না গেলে আমি তো ভিজে যাবো। তো রিক্সাওয়ালা বললো ঠিক আছে চলুন, বলে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক ওষুধের দোকানে গেলেন, নিজের জন্য ওষুধ খেলেন, এবং যেতে যেতে উনি ভাবছিলেন এই রিক্সাওয়ালা ভগবান কি রিক্সাওয়ালার জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। উনি কিন্তু শুধু নিজের ওষুধ কিনলেন না, রিক্সাওয়ালার জন্য ওষুধ কিনলেন। ফেরার পথে একটি দোকানে দাঁড় করিয়ে নিজের জন্য খাওয়ার জন্য পরোটা আর মাংস কিনলেন, এবং রিক্সাওয়ালার জন্য কিন্তু আর একটা পরোটা মাংস কিনলেন। এবার যখন নিয়ে তুমি রিক্সায় চলে এলেন, বাড়িতে চলে এলেন, বাড়িতে চলে আসার পর রিক্সাওয়ালাকে বললেন দেখো এইটা হচ্ছে তোমার জ্বরের ওষুধ, এই ওষুধটা তুমি দুবেলা করে খাবে, আর এইটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক, তুমি খাওয়ার আধ ঘন্টা আগে 3 দিন ধরে খাবে, 3 দিনের ডোজ, তোমার ঠিক হয়ে যাবে। বলতে বলতে রিক্সাওয়ালা তো কাঁদতে শুরু করেছে। তখন উনি আর একটা প্যাকেট বার করে বললেন দেখো এতে কিছু, তুমি বলছিল যে তোমার রোজগার খুব কম হচ্ছে, সবারই পাচ্ছ না, তোমার জন্য একটু রুটি মাংস এনেছি, রুটি মাংস। মানে রিক্সাওয়ালা তো 2 চোখ ভরে কান্নার জল, সে ভদ্রলোক থামাতে পারে। বলে কি হয়েছে? বলছে জানেন আমি কদিন ধরে ঈশ্বরকে বলছি যে ঈশ্বর আমার শরীরে সুস্থ করার ব্যবস্থা করে দাও, আমি তো গরিব মানুষ, আমি তো খেটে খাই, আমার শরীরই যদি না থাকে তাহলে আমি কি করে খাটবো, আর আজকে আপনি আমার না বলাতে আপনি ওষুধ দিয়ে দিলেন, তো আপনি আমার কাছে ঈশ্বর সম আমাকে মনে হচ্ছে। আর তাছাড়া ভীষণ খেতে, কিন্তু খাওয়ার পাচ্ছি না, তো সবারই নেই, খুব কম খাওয়া, তাই জন্য খাবার দিলেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বলে যেতে যেতে রিক্সাওয়ালা আরেকবার ফিরে এসে বললেন দাদা আরেকটা কথা আপনাকে বলে যাই, মনে মনে ঈশ্বরকে বলিনি, কিন্তু হয়তো ঈশ্বর শুনেছিলেন, মনে মনে ইচ্ছে ছিল যদি পরোটা মাংস খাওয়াতে পারি, বলে ভদ্রলোক চলে গেল, রিক্সাওয়ালা চলে গেলেন, ভদ্রলোক বাড়িতে ফিরে এলেন। খুব ছোট্ট গল্প, কিন্তু মরাল অফ দ্য স্টোরি যে আমরা যদি প্রার্থনা করতে থাকি ঈশ্বরের কাছে, তাহলে ঈশ্বর সেই প্রার্থনা, তার ভক্তের প্রার্থনা অন্য কোনো এক ভক্তকে দিয়ে কিন্তু পূরণ করে দেবেন। আমি আমার যে সব অ্যাড্রেস করি, ইন্সপিরেশনাল অ্যাড্রেস করি, শ্রীমায়ের কথা বলি এভরি সিনসিয়ার প্রেয়ার ইজ গ্রান্টেড, অল কলস আর আনসার্ড, এবং বলি যে দ্য ফেথ অফ অ্যাসপিরেশন শুড বি সো স্ট্রেট অ্যান্ড সো হার্ডেন্ড that no obstacle will be able to dissolve it. Yash, people knows you as a fitness trainer right at this point of time. Socially you are known as a fitness trainer, fitness coach, nutritionalist and others. You're a speaker also in television. But you know that I keep on saying that if you share, but you are also a family person at the end of the day. Right. If you share something about your family, it helps to create a connect with the audience. মানে তোমাকে তো লোকে ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে চেনে, কিন্তু তোমারও তো ফ্যামিলি আছে। আমি বলি যে একটা ফ্যামিলি ঠিক থাকলে বাকিটা ঠিক চলে। সো তোমার ফ্যামিলি সম্বন্ধে, বাবা মা ভাই বোন কি একটু যদি শেয়ার করো তাহলে এটা। सर मैं क्या ना एक वेरी डाउन टू अर्थ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिधर हमारे द वैल्यूज कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है। डेफिनेटली वी हम लोग काफ़ी मॉडर्न भी है, साथ ही साथ माई मॉम, माई डैड, माई ब्रदर, और माई मॉम एंड माई डैड दोनों बिजनेस में हैं, एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो वेल एजुकेटेड, तो ही इज़ अ MBA, सो ही हैज़ डन द MBA फ्रॉम IBS इंस्टीट्यूट। सो हमेशा हमारे एक मानना है कि आप लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करिए। क्या होता है, आप जब किसी को सपोर्ट करते हो, आप किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाता है। You get back what you give. Yes, so वो हमेशा से रहा है। और आज हम लोग जो भी चीज़ है, आई थिंक हम लोग कोशिश करते कि जितना हो सके कुछ ना कुछ लोगों का हेल्प करें। जैसे स्पेशली हम ये नहीं बोलते कि आपके पास आप एस्टेंड होके जाइए, लेकिन आपके जो लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए कुछ करिए, उनके एजुकेशन के लिए कुछ करिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए। अगर
शादी हो रहा है तो उनके लिए आप कुछ करिए। सो हमारे फैमिली का एक हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि जो हमारे जो लोग हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करिए ताकि वो भी एक अच्छा लाइफ जी सके। You said that you were 12 years you were in Bombay with your Right. Mashi and Mesho. So, Right. So they are also an integral part of the family. So राइट सो वो फैमिली भी एक्चुअली वेल एस्टेब्लिश फैमिली है मेरी बॉम्बे में, एंड फुल फैमिली अगर मेरा फैमिली का बात करें तो सब बिजनेस में ही है। चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, स्टार्टिंग से सब बिजनेस में ही हैं। मैं मासी एक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है, माई मासी एंड माई मम्मी दोनों, क्योंकि दोनों ने मतलब फैमिली को बहुत एक बोल सकते हैं हमारे लिए वो दो हमारे फैमिली के लिए एक पिलर है। वो उनके बिना वी आर नो वन। सो हर चीज आज क्या होता है कि हम लोग किसी को कुछ बताए कि ना बताए, बट ये दोनों के बीच में हमेशा सीक्रेट रहता है कि इनको तो बताना ही है, बाकी वो तीसरे के पास जाए कि नहीं जाए, बट ये दोनों के पास वो मैसेज पहुंचना ही चाहिए। और नहीं पता चलता है इनको तो ये पता कर लेते हैं, इतने स्मार्ट है वो। Let me go to the next question. I understand. আমি এখন বুঝতে পারছি যে I understand that fitness is your passion, fitness is everything in life, and you have practiced it yourself and you have given it to others. তুমি নিজে এটা প্র্যাকটিস করেছো, অন্যদের করেছো, বাট প্রত্যেকটা মানুষ নিজের প্যাশন নিজের কাজের বাইরেও আউটসাইড দি পেরিফেরি অফ হিজ প্রফেশন everyone has some kind of hobbies. Do you have any kind of hobbies outside your fitness? Right. Actually, सर मेरा एक और रीजन है फिटनेस में आने का। मेरे को बचपन में इंडिया के लिए खेलना था क्रिकेट, और मैं क्रिकेट के पीछे इतना बड़ा जुनून था मेरे अंदर कि मैं बॉम्बे में मलाड से चर्चगेट ट्रेन में, और जिधर मेरे को एकदम अलाउड नहीं था ट्रेन में बैठना, पब्लिक में जाना, क्योंककि इतना इन्फेक्शन का मेरे को प्रॉब्लम था, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था। इम्यूनिटी अगर आपका स्ट्रांग नहीं होना, जैसे आप देखेंगे कोविड में काफी लोगों को डेथ हुआ, 95% से ज्यादा लोगों को डेथ हुआ ओनली बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी पावर। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है। तो मेरे अंदर इतना पैशन था और क्रिकेट का जुनून था कि वो मैं 7-8 किलो का क्रिकेट का किट बैग लेके, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा है प्रॉपर, और वो बैग लेके मैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में 35 किलोमीटर जाता था। भली मेरे को आई वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन हमेशा से, बट मेरा हमेशा रिजेक्शन हो जाता था क्योंकि मैं फील्डिंग में झुक नहीं सकता था। एक तो आई वॉज हैविंग अ बिग टमी, प्लस इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, और ग्राउंड में इतना धूप, तो मैं 10-15 मिनट में टायर्ड हो जाता था। तो मैं कोशिश कर क्रिकेट वॉज माई लाइक लव ऑफ माई लाइफ। मैं कुछ भी छोड़ सकता था, त्याग कर सकता था क्रिकेट के लिए। Do you follow cricket right at this point of time? मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, एंड आई एम वेरी मच पैशनेट ऑफ टेबल टेनिस, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेबल टेनिस भी खेला हूँ। एंड मैं बॉम्बे में काफी अपार्टमेंट्स में आई टेकन अ पार्टिसिपेशन इन बैडमिंटन ऑल्सो। सो ये जो 3 स्पोर्ट्स है, games basically badminton, table tennis and cricket, right, I can tell is a part of your integral part of your right मैं और आज भी खेलता हूँ, मैं हर हफ्ता खेलता हूँ मैं। Now you're a fit person, so when I met you first time and found out that you're a fitness trainer, I'm asking a very transparent question. আমার মনে যে প্রশ্ন ছিল সেটা আমি করছি। At that point of time, I was much 20 kgs more, and I called you. Kintu I found you to be very costly, and what is the reason for being so much costly for a fitness training? I am not quoting the amount, but it appeared that means I should right. And I reduced it. It's not that I didn't reduce it. Right. I find out, in fact, the viewers know that how much I have reduced, because they have followed me over the last 6 years. So right. From after Corona, during the Corona period, I have 6 months I reduced 20 kilos. right. কিন্তু তোমার এই ফিটনেস ট্রেনিং এর এত চার্জ কেন? राइट सर, अगर आप देखेंगे, अगर आप पूछोगे कि मर्सिडीज का कीमत क्यों इतना है, मारुति का कीमत इतना कम क्यों है, या फिर नैनो का कीमत और कम क्यों है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कीमत इतना कम क्यों है, क्योंकि एक तरीके से उन लोग ने इतना रिसर्च किया है उस चीजों के प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब जाके वो एक ब्रांड बना है, तब जाके वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड दे पा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मैं अपने 10 साल का एक्सपर्टीज लोगों को दे रहा हूं। पहला चीज, ठीक है, मैं इतना जड़ तक जा चुका हूं फिटनेस के। मैं ऑडियंस में लोगों में चैलेंज करता हूं, आपको बैक का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, शोल्डर का इश्यू है, बॉडी में कहीं पे भी पेन है, मैं उसको कम कर सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ। कितना भी आपका वेट है, मैं उसको कम कर सकता हूं गारंटी के साथ। मैं 1 साल का कोर्स करता हूं लोगों के साथ। अगर आपको नहीं रिजल्ट आना, मेरे साइड से 1 साल का फ्री कॉस्ट, मैं आपको 1 साल और फ्री ट्रेनिंग दूंगा, रिजल्ट आना ही आना है।
तो मैं वो कॉन्फिडेंस का, वो मेरे 10 साल का एक्सपर्टीज का मैं लोगों से चार्ज लेता हूं। लेकिन मैं ये सब नजरअंदाज करते हुए, मतलब ये सब चीज को रखते हुए, मैंने क्या देखा है कि काफी लोग मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिटनेस का जो दरकार है सब लोगों को है। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ ट्रेनर्स, जिसको मैं खुद पर्सनली ट्रेन करता हूँ, ग्रूम करता हूँ, और वो जगह जगह जाके लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आज वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ 25 ट्रेनर्स, और 25 जो ट्रेनर्स हैं हमारे पूरे कैलकाटा में फैले हुए हैं। कैलकाटा में जिस लोकेशंस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं घर पे लोगों की सुविधा के लिए, लोगों का लाइफ इजी बन रहा है, बेटर बन रहा है, और कम चार्जेस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही क्वालिटी। তোমার হাউ ডিড ইউ মার্কেট ইয়োরসেলফ, মিন্স তুমি যে এটা করো, হাউ ডিড ইউ রিচ দ্য পাবলিক, হাউ পিপল কেম টু নো? আমি তো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে জানতে পারি তোমাকে, তুমি কি করে জেনারেলি, व्हाट वाज योर इनिशिएटिव ऑफ? सब पहला चीज है कि देखिए आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल बन चुका है कोई भी प्रोफेशनल के लिए। Any other things, because we are running out of time. राइट। दूसरा चीज है कि लोग जब हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो लोगों तक मैसेज वर्ड ऑफ माउथ रहता है। प्लस उसके बाद ग्रेट मार्केटिंग, राइट, तो हर एक लोग, राइट सर, तो वो हर एक लोग क्या करते हैं मेंबर्स, क्योंकि हमारा उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग ने सिस्टम रखा है। आप लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, अपना हेल्थ में इंप्रूव करिए, आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी कवर अप करिए, वो भी हम सिखाते हैं लोगों को, वो कोई फिटनेस प्रोफेशनल नहीं सिखा सकता। तो मैं आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, वो मैं नॉलेज लोगों तक शेयर करता हूँ। Your aim 5 years from now, where do you want to reach, or what would you like to be known as 5 years from now? सर आज की तारीख में यश फिटनेस एक वन ऑफ द रेनाउंड फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन ईस्टर्न रीजन, एंड इन नेक्स्ट 5 years लोगों का सपोर्ट प्यार रहा तो वन ऑफ द लीडिंग फिटनेस ब्रांड बनेगा इंटरनेशनली। Excellent, excellent. This is the kind of spirit. When I started this program in 2016 on the 2nd of July, today is the 309th week or 309th episode, I kept on saying that I want to be a soldier in making Shonar Bangla, Golden Bengal. Shonar to kichu hani, but in Bengali we say Shonar chele, Shonar me, Shonar sangsar. It's the ideal chele, ideal boy of the family, ideal girl, or ideal family. Do you think that Bengal is going the right direction of making Shonar Bangla? सर देखिए आज के तारीख में ना सब लोग अपने आप में एक्सपर्ट है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और आज के अगर आप यूथ को देखेंगे एक जोश है, एक एनर्जी है, एक फ्लो है, आगे बढ़ने का चाहत है, राइट। मैं हमेशा यही बोलता हूं, आपको जो करना है आप करिएगा जरूर, फैमिली को बता के, फैमिली सपोर्ट नहीं करे फैमिली से छुपा के, बट करिएगा जरूर। क्योंकि क्या होगा जब आप ऐसा एक सर्टेन टाइम आएगा कि आपको लगना नहीं चाहिए कि आपने लाइफ में ये चीज मिस आउट कर दिया। हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, सोनार बांग्ला की होंगे, डेफिनेटली होंगे सर, अगर फुल एनर्जी के साथ, सपोर्ट के साथ, और हम आपस में एक मिलजुल कर एक सोसाइटी के तौर पे लोगों तक हेल्प करेंगे। बिकॉज सर क्या होता है, देखिए आज आप किसी के काम आते हो तो वो कल जाके आपको काम आएगा ही आएगा, बट ये उम्मीद नहीं रहता है, बट स्टिल तो हमारा जो बंगाल है वो भी काफी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, एंड काफी प्रोग्रेस किया है कुछ सालों में है, एंड आने वाले सालों में बहुत डेफिनेटली। आज बंगाल जो है वर्ल्ड में काफी फेमस है, राइट, वो इसलिए क्योंकि इनके कारनामे वैसे होते हैं, ठीक है, हमारे वर्किंग स्टाइल, हमारा कल्चर, हमारे एक्टिविटीज, हमारे कलकत्ता के चाट इतने फेमस है, तो वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो সোনার বাংলা হবে, হবে। সো সোনার বাংলা হবে, আমি যে প্রত্যেক দিনের মতো বলি, ইয়াশও তাই বললো, আমার ভাষায় হয়তো বলেনি, যে সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী রাজনৈতিক দল করবে না, সোনার বাংলা করবে আমার আপনার মতো সোনার বাঙালিরা। চলুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করে। আমরা লাস্ট question of this episode, and last question to you. If you follow my episodes, you will find that every episode I talk of 7 rules of success. Those are not rules that has been written by me or collated. These are collated from different sites, from different successful individuals, and I keep on writing the stuff different. The words are different, and keep is word is power, shabdoi brahma. When the team Joyer Pathe Sange Sujoy selects his guest, it's based on his success itself. Your advice for success from our viewers, you know that I served Techno India as the director and the CEO for the last almost 14 years. On the 2nd of June, I'll be completing 14 years. Congratulations for that. Yeah. And today, means, and
my students look forward for such formulas. So your formula for success or your advice for success for my viewers, राइट most of which are students. Yeah. सो लाइफ में आपको कुछ भी करना हो ना, उसके लिए आपको पीएचडी करना बहुत जरूरी है. पीएचडी जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है हम डिग्री का बात कर रहे हैं, बट फॉर मी व्हाट इज पीएचडी? पी फॉर पैशन. आपको अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होना चाहिए. काम ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इट कैन एनीथिंग. आपको अगर वेट लॉस भी करना है, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना है, उसके प्रति भी आपके अंदर पैशन होना चाहिए. वो नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे. दूसरा होता है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क आपको इस तरह करना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. ऐसा नहीं कि आप समझिए मैं फिटनेस में हूँ तो मैं थोड़ा फिटनेस का बात ज़्यादा करता हूँ. अगर आप वेट लॉस में जा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं आप 2-3 घंटा वर्कआउट करिए डेली का. उसमें क्या होगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता 2-3 महीने में, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. वो नहीं करना है अपने को. हमको क्या करना है कि स्मार्ट वे में उसको करना है. बट हार्ड वर्क का मतलब होता है डेली करिए, डेली करिए. एंड जब डी का बात आता है उसको बोलते हैं डेडिकेशन. डेडिकेशन के साथ करिए, डेली करिए कुछ ना कुछ. बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग क्या करते हैं, कुछ शुरुआत तो करते हैं बट वो रेगुलरिटी नहीं रहता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, डेडिकेट टुवर्ड्स योर वर्क. सो पीएचडी करके रखिए. आप कुछ भी प्रोफेशन में जाइए, पीएचडी इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. যাই করতে হবে সফল হওয়ার জন্য, যাই করতে হবে ডেইলি করতে হবে. মানে আমি বলি না যে থটস, অ্যাকশন, হ্যাবিটস, ক্যারেক্টার এন্ড ডেস্টিনি, সুতরাং সেই ডেইলি করতে হবে, ডেডিকেটেড করতে হবে, হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে. তাহলে সাফল্য কিন্তু হাতের মুঠোয় চলে আসবে. চলে এসেছি প্রোগ্রামের একদম শেষে. ধন্যবাদ দেওয়ার পালা. ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারুতিক অ্যাডভার্টাইজিং. হোর্ডিং, পোস্টার্স, ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম. ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু, ডাইরেক্টর রেজনভি গ্রুপ, যারা আমার এই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলস ডিল করছেন. ধন্যবাদ দেব দেব সেন, আমার যে গানটি প্রথমে, মধ্যে এবং শেষে শোনেন সেই গানটি কম্পোজ করেছেন, ডাইরেক্ট করেছেন. ধন্যবাদ দেব রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই গানটি গেয়েছেন. ধন্যবাদ ডিরেক্টর্স অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ শেওব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা অনেকদিন আমার পাশে ছিলেন এই প্রোগ্রামের জন্য. চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটি শায়রি. হিন্দিতে বলি, ভালো লাগে, ভীষণ ইন্সপায়ার্ডও লাগে. লোকে বলে স্যার খুব ভালো বলছেন, বলে যান. বলছে না कामयाबी लोग दुनिया के डर से नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है. नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है. और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरा दुनिया बदल देता है. कामयाब लोग अपने फैसले से पूरा दुनिया बदल देता है. कामयाब लोग अपने फैसले से পুরা দুনিয়া বদল দেতা হয়. নমস্কার, ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে. দেখতে থাকুন জয়ের পথে, সঙ্গে সুজয়. জয়ের পথে